پروگرام اکھر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج جو ہم آپ سے بات کریں گے وہ خاص طور پہ ایک دردناک واقعہ جو کہ رونما سویڈن میں ہوا، اور سویڈن میں قرآن مجید کو جلا دیا گیا، اور پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی کتاب کو جلانا یا اس کی بے حرمتی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب پاکستان میں مسیحیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، چرچوں پر حملے کر دیے جا رہے ہیں، قتل و غارت شروع ہو چکی ہے، اور جب بھی کسی مذہب کے خلاف جب تشدد کیا جاتا ہے تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور خدا اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور انہیں اس بات کا علم بھی ہے کہ وہ آدمی جس نے قرآن مجید کو جلایا اس آدمی کا تعلق مسیحیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آدمی جو کہ شیعہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ آدمی عراق کا رہنے والا ہے، عراقی آدمی ہے۔ ڈاکٹر جیلی، آج اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پروگرام کی طرف جائیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ایک جو واقعہ سویڈن میں ہوا، اور وہ قرآن شریف کے جلانے کا ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہے ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ دو باتیں بلکہ میں کرنا چاہتا ہوں، جی آپ بھی اس میں ایڈ کیجئے گا۔ یہ جو شخص ہے، جیسے ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے اور کچھ مجھے اس کا علم بھی ہے، جس نے سویڈن میں یہ قرآن شریف کو جلانے کیا، اس میں کسی طرح بھی کوئی کرسچینٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ یہ شخص جو ہے یہ ایک کانورٹ ہے، کہہ لیں کہ کانورٹ نہیں بلکہ یہ کہہ لیں کہ یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے یا شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوئے یہ خدا سے متنرف ہو کے، اور یہ اپنے آپ کو اب ایتھیسٹ کہتا ہے۔ تو اس میں کسی بھی طرح اس ملک کا قصور نہیں ہے، یہ عراق سے آیا ہوا شخص وہاں پہ رہ رہا ہے۔ اب آپ پاکستان میں صلیب کو بنا کر جلا رہے ہیں، آپ بائبل مقدس کو جلا رہے ہیں، آپ چرچز کو آگ لگا رہے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید کو آپ تسلیم نہیں کرتے، یا قرآن مجید کی ان باتوں کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، اس سے پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کی حفاظت کریں، ان پر ایمان رکھیں۔ اگر آپ پہلے کی اتری ہوئی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے، ان پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی حفاظت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میں یہاں چند ویڈیو لگاؤں گا اور اس کے ثبوت کے طور پر کہ بہت سارے مولانا جو ہے وہ سویڈن کا جھنڈا لگا کر، اور انہوں نے اپنے باتھ روم میں وہ ایک کروس بنا دی ہے تاکہ وہ اپنی پوٹی اور پیشاب وہاں کرے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سویڈن نے قرآن پاک کی بدترین گستاخی کی۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے یہ فلیش ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سویڈن کا جھنڈا بنا دیا ہے، اور یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ جنہوں نے بنایا ہے انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں پیارے بھائی؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ فلیش کے اوپر ہی کیوں تصویر بنا دی ہے سویڈن کے جھنڈے کی؟ میں نے پہلے بہت سوچا اس کے بارے میں کہ جیسے انہوں نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے تو انہیں اس کا کس طرح سے جواب دیا جائے، لیکن وہ پھر میں نے ایک تو اپنے گھر کے بھی واش روم پہ فلش پہ اسی طرح سے بنایا ہے۔ گھر پہ بھی ایسے ہی بنایا ہوا اسی ہے؟ طرح میں آپ کو اپنی ویڈیو شیئر کروں گا، گھر پہ انٹرس پہ بھی بنایا ہے، اور گھر کے جو فلش یوز ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی بنایا ہے، اور یہ میں اسپیشل یہاں پہ لے کے آیا تھا کہ یہاں پہ دھرنے میں سب کو مارچ میں جو لوگوں کو دکھائیں گے تو انہیں بتانے کے لیے کہ ان کی جو اوقات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے قرآن پاک کی جس طرح بے حرمتی کرتے ہیں تو ان کی اوقات یہ ہے، اگر وہ باز نہیں آئیں گے ہم اس سے بھی زیادہ ان کا برا حال کریں گے۔ اسی کے اوپر بیٹھ کے غلاظت کی جاتی ہے سویڈن کے جھنڈے پہ؟ بالکل ایسے ہے، وہ جو ادھر گھر میں استعمال ہو رہا ہے وہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر کہتے ہیں میں موبائل میں دکھا دیتا ہوں، پرمنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ یوز ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ موبائل میں اسی طرح چلا لیتے ہیں۔ چلے جی آپ نکالیں۔ جو ان کی سوچ ہے آپ کے مطابق وہ اہل کتاب ہے، کیا اس کی یہ بے عزتی نہیں ہے؟ اس کی یہ بے عزتی ہے۔ آپ
दूसरे नंबर पे देखें, अगर आपको फतवा लगाना है तो आप इराक के खिलाफ क्यों नहीं लगाते, जहां का वो एक बशिंदा है, क्योंकि उस आदमी ने जाकर स्वीडन में केस किया, उसने जाकर वहां रेफ्यूजी अख्तियार की, लेकिन वो शिया जो है वो खुदा का वो मुकर हो गया, उसने खुदा से इनकार कर लिया। जिसको आदमी अब कहता है कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता, लेकिन हकीकत में तो वो मुसलमान है, हकीकत में तो वो मुस्लिम शिया खानदान से तल्लक रखता है। लेकिन अगर आपको फतवा लगाना है तो आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं करते, जिन्होंने वो कुरान मजीद को जलाया। इसमें मसीहों का दूर दूर तक कहीं भी हाथ नहीं है। अगर उसने वो कुरान मजीद को मस्जिद के सामने जाकर जला दिया, उसने कहा कि मैं इस किताब पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि इस किताब में जो बातें लिखी हैं वो मेरे इल्म और मेरी सोच से हटकर हैं, इसलिए मैं इस मजहब को तस्लीम नहीं करता, तो इसमें मसीहत का कहीं भी कोई किरदार नज़र नहीं आता। और अगर आप पाकिस्तान में सलीब को जलाते हैं, आप पाकिस्तान में बाथरूम में क्रूस को लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी हार तस्लीम कर ली है, क्योंकि आपने इस बात का सबूत दे दिया है कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप मसीहों का मुकाबला कर सकें। जबकि आप ये कहते हैं कि अहले किताब की हम इज्जत करते हैं, अहले किताब के बगैर अगर आप हज़रत यीशु मसीह का कलमा नहीं पढ़ते, तो उस पर दरूद नहीं फूंकते, तो आपकी नमाज भी आसमान पर कबूल नहीं होती। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हो रहा कि आप किस किस्म के मुसलमान हैं जो कि दूसरों को डिग्रेड करते हैं, जो कि आपकी किताब आपको हुक्म देती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस किताब पर अमल नहीं करते। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त करते हैं, बल्कि तमाम मज़हबों की हम इज़्ज़त करते हैं, और आपको भी दूसरे मज़हबों की इज़्ज़त करनी चाहिए, दूसरों की माएँ बहनों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जब हम आपकी इज़्ज़त करते हैं तो आपका भी ये हक़ है। और एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं है, पाकिस्तान मसीहों के खून के कतरों से भी बना है। हमने भी उस मुल्क के लिए वोट डाले हैं, हमारे भी बुजुर्गों ने उस मुल्क के लिए अपना खून दिया है, हमने भी जंगों और लड़ाइयों में हिस्सा दिया है, और हमने भी उस मुल्क के लिए वोट कास्ट किए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर उस रब करीम ने आपको सरफराजी दी है, इस मुल्क का सरफरा बनाया है, तो आप उसे नजायज इस्तेमाल ना करें। आप एक प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, मसीह हमेशा पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ये दर्दनाक है कि मुसलमानों ने हमेशा हम पर हमले किए हैं, हमें लाठियों और छुरियों और चाकुओं और डंडों के साथ मारा और पीटा और कूटा है। लेकिन अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप जुल्म करेंगे तो सब लोग खामोश रहेंगे। अब खामोशी का वक्त नहीं रहा मेरे भाई, अब आप लोगों को अकल के नाखून लेने की ज़रूरत है। अब आपको एक इंसाफ के तराजू में सबको तोलने की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान में मसीहों के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मसीही मुल्क में कुरान मजीद जला दिया गया, आप जब किताब मुकद्दस को, पूरे चर्च को आग लगा देते हैं, हज़ारों की तादाद में बाइबलें जला दी जाती हैं, बम चला दिए जाते हैं, तो उस वक़्त आपकी ज़बान क्यों बंद रहती है? आपकी ज़बान पे ताले क्यों लग जाते हैं कि मसीहों की किताब मुकद्दस को जला दिया गया, लेकिन आप और आपके आला हुक्मरान भी खड़े नहीं होते? क्योंकि आप एक वाकई ही नस्ल परस्त लोग हैं, और नस्ल परस्ती की वजह से आप मसीहों से हमेशा हसद करते रहते हैं। और हसद को बंद करके आप प्यार की फ़ज़ा को कायम करें, और यकीन जाने आपका मुल्क जो है वो बरकत का बायस बन जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं, अगर आपको बाइकाट करना है तो आप उस मुल्क के साथ बाइकाट करें जिस मुल्क का वो बशिंदा था, क्योंकि यहाँ इराक का वो बशिंदा है, तो इसका मतलब है आप इराक के खिलाफ बगावत करें, इराक के साथ अपने जो तल्लक हैं, अपने तिजारती मामलात हैं, उसको बंद कर दें। तब तो मैं जानूं कि आप एक वाकई मज़हब के वफादार हैं, वाकई आप एक रसूल आशिक हैं, और तब जाकर आपकी
हकीकत और आपकी अकल लोगों के सामने खड़ी होगी और लोगों को पता चलेगा कि आप वाकई एक सच्चे मुसलमान हैं और आप एक रसूल के आशिक हैं। मेरे भाइयों, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है जब आप नजायज़ तरीके से मसीहों के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म करते हैं। आपकी बेटियां बेटियां हैं, लेकिन वहाँ के मसीहों की बेटियां आपकी नज़र में भेड़ और बकरियां हैं। जब चाहा आपने ठा लिया, जब चाहा उन्हें काट डाला। ये इंसाफ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप को अभी पढ़ने की ज़रूरत है, आपको इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, आपको इंसानियत का सबक सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इतने ही मज़हब के वफ़ादार हैं, तो आप अगर इतनी ही मसीहों से नफ़रत करते हैं, तो आप यूरोप और अमेरिका में क्या लेने के लिए आते हैं? आप वहाँ इस्लामी मुल्कों में क्यों नहीं जाते? आपका जो ठिकाना है, आपको इस्लामी मुल्कों में जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामी मुल्कों में आप जा नहीं सकते, क्योंकि जो इस्लामी मुल्क वाकई कुछ खाते पीते हैं या उनके पास कुछ रोज़गार है, वो माली तौर पे अच्छे हैं, तो वो आपको मुंह नहीं लगाते। इस वजह से आप यहाँ भाग कर आते हैं। पेपरों के चक्कर में आप गुर्बत से आपको जब निजात मिलती है तो आप इन्हीं मुल्कों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। ये इंसानियत नहीं है, ये कहीं का भी असूल नहीं है। और जहाँ तक कुरान मजीद के जलाए जाने की बात है, सबको अफसोस है, सबको दर्द है, लेकिन आप भी अपने आप पर कंट्रोल करें। आप भी अपने आप पर इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि इंसानियत का सबक सीखें। ये मेरा पैगाम पाकिस्तान के तमाम मसीही और गैर मसीही मुसलमान लोगों के लिए है। और अपने आप को आप एक हमदर्दी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। दूसरों की कसूर, दूसरों की गलतियों की सज़ा वहाँ रहने वाले अक़लियतों को ना दें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और ज़रूर अगर ऐसा होगा तो एक दिन वहाँ की कौम भी खड़ी होगी और कौम मुहतदा तक हम भी जा सकते हैं। खुदावंद आप सबका हाफ़िज़ और निगहबान हो।